کہاں سے آ رہے ہو کامران؟ تمہیں ذرا بھی پرواہ ہے؟ رات سے تمہارا باپ جیل میں ہے اور تم نہ جانے کون سی دنیا میں ہو۔ وہ جو گھر لوٹا تھا آتے ساتھ ہی شادی کی بات سنتا حیران ہوا تھا۔ کیوں بابا نے کیا کیا ہے جو انہیں پولیس لے گئی ہے؟ وہ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا ارقم، انہیں گرفتار کر کے رات سے لے کر گیا ہے۔ وکیل کو کال کرو اور اپنے باپ کو چھڑوا کر لاؤ۔ شادیہ کے غصے میں بولتے دیکھ کر وہ وکیل کو کال میں لانا تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے راستے میں ہی پتا چلا تھا کہ وکیل کو کچھ دیر پہلے ہی چودھری شفیق کی کال پولیس اسٹیشن سے آئی تھی۔ وہ وہاں ہی جا رہا تھا۔ وہ بھی فل سپیڈ میں گاڑی بھگاتا پولیس اسٹیشن لے گیا تھا۔ وہ بہت غصہ تھا، اس کا دل کر رہا تھا ارقم کا منہ توڑ دے۔ پولیس اسٹیشن کے باہر گاڑی روکتا وہ تیزی سے اندر گیا تھا۔ کہاں ہے وہ ارقم؟ اس نے اندر داخل ہوتے چیخ کر پوچھا تھا۔ ایسا بولو، یہ پولیس اسٹیشن ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں۔ ارقم اپنے کیبن سے نکلتا نگہبانیت سے بولا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کو گرفتار کرنے کی؟ وہ جاہلانہ انداز میں بولتا ارقم کی طرف بڑھا تھا۔ گریبان پر ہاتھ ڈالنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ سیدھا حوالات کی سیر کرا دوں گا۔ ارقم کی بات پر وہ بامشکل رکا تھا۔ کامران جسٹ اسٹاپ اٹ پلیز۔ وکیل جو ارقم کے کیبن میں موجود تھا، اس نے باہر نکلتے کامران کو تنبیہ کیا تھا۔ کامران لب بھیج گیا تھا۔ تمہارے باپ کو اس بار چھوڑ رہا ہوں، ایک بار ثبوت مل جائیں گریبان سے پکڑ کر یہاں تک گھسیٹ کر لاؤں گا۔ ارقم اپنے کندھوں سے نظر نہ آنے والی گرد جھاڑتا ہوا وارننگ دے رہا تھا۔ تجھے تو میں دیکھ لوں گا سالے، کامران غصے سے لال پیلا ہوتا بولا تھا۔ ایک تصویر فوٹو فریم کروا کر بھیجوں گا، دیکھتے رہنا، وہ طنزی انداز میں مسکرا کر بولا تھا۔ کامران تپ گیا تھا۔ اس کے وکیل نے بامشکل اسے قابو کر کے چپ کروایا تھا۔ چودھری شفیق کے چھوڑتے ہی وہ اسے وہاں سے لے گئے تھے۔ کامران کے پیچھے اپنے بندوں کو لگا دو، ارقم نے کامران کو پرسوچ نظروں سے دیکھتے ثاقب کو کہا تھا، جس پر وہ سر ہلا گیا تھا۔ وہ واپس حویلی آ رہا تھا، اس کا موڈ خوشگوار تھا۔ چودھری شفیق کو پریشان کر کے اسے سکون ملا تھا۔ نہ جانے کیسا سکون تھا جو اسے دوسروں کی پریشانیوں سے حاصل ہو رہا تھا۔ اپنی انگلی پر گاڑی کی چابی گھماتا وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر ارتم نہ جانے کہاں سے نکل آیا تھا۔ بڑے بھیا! ارتسم کی آواز سنتا وہ ایک دم رک گیا تھا۔ سخت نظروں سے اس نے ارتسم کی جانب دیکھا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ارتسم بے سلگ کر پوچھا تھا۔ میں نے کچھ پوچھنا تھا، وہ رازدارانہ طریقے سے بولا تھا۔ ارقم نے سوالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آج کتنی رشوت لی ہے؟ اس کے سوال نے ارقم نابش شاہ کو شدید طیش دلایا تھا۔ ایک ہی جست میں ارتسم کے پاس پہنچ کر وہ اس کے منہ پر مکہ مار چکا تھا۔ ارتسم بھی نہ رکا تھا، اس نے بھی بدلے میں ارقم کے پیٹ میں مکہ مارا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ دونوں بری طرح گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ ہائے میرے اللہ، پاگل ہو گئے ہو تم دونوں! بڑی بیگم جو نماز پڑھ کر آئی تھی، انہیں دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ انہوں نے ارقم کو پکڑ کر کھینچا تھا۔ بڑی بیگم کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے، ورنہ نہ جانے ایک دوسرے کو قتل ہی کر ڈالتے۔ داور شاہ گھر پر نہیں تھے جو ان کو روک پاتے۔ نمرا سر درد کی دوائی کھا کر اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ ارتسم نے پیچھے ہٹتے اپنے ہونٹ سے خون صاف کیا تھا۔ ارقم نے بھی اپنی شرٹ ٹھیک کی تھی، البتہ اسے کوئی ظاہری چوٹ نہیں آئی تھی، سوائے اس کے کہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں مارتے ہوئے تھوڑی زخمی ہو گئی تھی۔ اس سے کہے مجھ سے دور رہے، ورنہ میں اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تائی جان، یہ انسان پاگل ہے۔ ارتسم بھی غصے سے چیخا تھا۔ ارقم بے ساکھ دوبارہ اس کی جانب بڑھا تھا جب بڑی بیگم نے تیزی سے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ تم فوراً اپنے کمرے میں جاؤ، بڑی بیگم نے ارتسم کو کہا تھا، جو ایک غصیلی نگاہ ارقم پر ڈال کر حویلی سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ ارقم تم تھوڑا اپنے غصے کو قابو کیا کرو بچہ۔
बच्चा है, अर्तसम इससे मत लड़ा करो, जैसा भी है तुम्हारा छोटा भाई है। बड़ी बेगम ने उसे नरमी से समझाना चाहा था। नहीं है मेरा कोई भाई, ना ही मेरा कोई बाप है, ना ही मेरी माँ। नफरत है मुझे इन सब रिश्तों से। वो गुस्से से चीखा था। बड़ी बेगम के माथे पर बल पड़े थे। उन्होंने अरकम को थामना चाहा था जब वो अपने बाजू छुड़वाता तेजी से ऊपर अपने कमरे में चला गया था। ये चेहरे पर क्या हुआ है? दावर शाह, जिसने उसे कारोबारी मामला समझाने के लिए बुलाया था, उसके चेहरे को देखकर कुछ हैरानी परेशानी से पूछा था। आपके बड़े पोते के गुस्से का कमाल है, वो तपे हुए लहजे में बोले थे। तुमने उसे क्या कहा था? दावर शाह ने भवेश पूछा। वो जानते थे बिलावजह हाथ उठाना अरकम का काम नहीं है। मैंने बस इतना पूछा कितनी रिश्वत ली है। वो भड़क उठे। उसने कंधे उचकाते लापरवाही से जवाब दिया। उसके गुस्से को हवा मत दिया करो, अपने काम से काम रखो। अर्तसम, दावर शाह ने उसे सख्त लहजे में कहा था। उसके लहजे पर अर्तसम का मुंह बन गया था। दादा जान, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। निमरा नॉक करते दावर शाह के कमरे में दाखिल हुई थी। अर्तसम ने बेसाख नजरें उठाकर उसे देखा था, जो एक नजर भी इसकी तरफ नहीं डाल रही थी। निमरा, मुझे भी एक कप चाय बना देती। अब वो दावर शाह के सामने शराफत का मुजाहरा करता उदास चेहरा बनाकर बोला था। निमरा ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा था, मगर उसके चेहरे पर नजर पड़ती उसकी आंखें पूरी खुल गई थी। यह आपके शहजादे का काम है, उसने तंजी अंदाज में अपने चेहरे की तरफ इशारा करते निमरा की सवालिया निगाहों का जवाब दे दिया था। निमरा, बच्चे उसे कोई ऑइंटमेंट दे दो, ये दोनों ही पागल है। दावर शाह ने सन्नफी में हिलाते कहा। वो अर्तसम को भी बखूबी जानते थे। तुम जाओ, कुछ चेहरे पर लगाओ, कल हम बात कर लेंगे। उन्होंने निमरा के हाथ से चाय पकड़ते मुंह फुला कर बैठे अर्तसम से कहा, जो पहले ही किसी मौके की तलाश में था। झट से उठ खड़ा हुआ था। अब कुछ नहीं कहोगी अरकम को? दावर शाह के कमरे से बाहर निकलते उसने निमरा को बाजू से पकड़ते अपनी जानिब उसका रुख फेरा था। ये तुम दोनों का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर बोलूंगी। निमरा ने नरमी से बोलते उसका हाथ अपने बाजू से हटाया था। साफ बात बताओ, अपने शहजादे को कुछ नहीं बोल सकती? तुम उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं रखती? तसम ने उसका बाजू जोर से पकड़ते सुलगते लहजे में पूछा था। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख होने लगी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, भाई है वो मेरा, उसने बेसाख अर्तसम के चेहरे पर थप्पड़ मारते दृष्ट लहजे में कहा था। उसे कहा मंजूर था लोग उसके पाक रिश्ते पर गंदी नजर से देखे। अर्तसम का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो बामुश्किल खुद पर काबू किए हुए था। मेरी एक बात अपने जहन में बिठा लो, मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो तुम मुझ पर दोस्त जमाओ या हुक्म चलाओ। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। वो अर्तसम का काला दबोचती फट पड़ी थी। अर्तसम सख्त निगाहों से उसके चेहरे को तक रहा था, जो गुस्से की हदूद से सुर्ख पड़ने लगा था। बहुत जल्द मैं इस बात का जवाब दूंगा, वो निब्रा का चेहरा दबोचे सख्त लहजे में बोला था। निब्रा को इससे अचानक ही खौफ महसूस हुआ। दूर हटो मुझसे, नफसियाती इंसान। निब्रा के धक्का देकर उसे दूर हटाया था। अर्तसम ने ज़ोबैनी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा था। जस्ट वॉट एंड वॉच माई लव, वो तस्वीराना अंदाज में निब्रा को बोलता लंबे लंबे डाक भरता अपने कमरे में चला गया था। उफ, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वो परेशानी में अपने चेहरे पर हाथ रखती बोल रही थी। उसका सूजा चेहरा और फटा हुआ होंठ याद करके उसकी परेशानी पर बल पड़ गए थे, जबकि उसकी गिल्ट में मजीद इजाफा हो चुका था। उसने मुलाजमा के हाथों चाय और ओनमेटिन उसके कमरे में भिजवा दी, जो 2 मिनट के बाद ही मुलाजमा वापस ले आई थी। अब उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी परेशानी होने लगी थी। आप ही, मेरे सर में दर्द हो रही है, आयल से मसाज कर दे। अरकम, जो किसी देर सोकर उठने के बाद नीचे आया था, इसके लिए उसने निमरा से कहा। हाँ बैठो, मैं ऑयल लेकर आई।
निम्रा ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया था। अरकम टीवी लॉन्च में सोफे के पास क्लीन पर बैठ गया था। निम्रा ऑयल लेती सोफे पर चौपड़ी मारकर बैठ गई थी। मुझे पता चला तुम्हारी और तसम की आज लड़ाई हुई है। निम्रा ने उसके बालों में तेल डालते बेहद सरसरी अंदाज में पूछा था। मेरी कोई गलती नहीं है आपी, वो ही मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाता है। उसे छोड़े, ये बताएं आपका दिन कैसा गुजरा। वो बात को पलटता पूछने लगा। मैंने बस घर के काम किए। आज मुलाजमा की बेटी जल्दी आ गई थी, उसने सारी सफाई करवा ली थी। निम्रा ने आस्ते से उसके सर के मसाज करना शुरू की थी। अतसम जो अपने कमरे से बाहर आया था, सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें जलने लगी थी। निम्रा और अरकम को मुस्कुराते देखकर वो सुलग उठा था। बड़ी खिदमतें हो रही हैं, वो तंजीह अंदाज में बोलता उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया था। अरकम उसने उसे मुकम्मल इग्नोर किया। निम्रा ने उसकी जानिब देखने से गुरेज किया था, मगर उसकी नजरें महसूस करके वो पहलू बदलने लगी थी। मुझे इग्नोर किया जा रहा है, वो सख्त लहजे में बोलता सोफे से टेक लगा गया था। इन दोनों के जवाब न देने पर वो मजीद जल उठा था। अरकम मसाज करवाने के बाद उठ गया था। थैंक यू आपी, अरकम निम्रा से बोलता कमरे में शावर लेने चला गया था। मुझे भी मसाज करवानी है। वो अरकम की जगह बैठता सख्त लहजे में बोला था। निम्रा ने खामोशी से लब काटते उसके बालों में तेल डालकर मसाज करना शुरू की थी। अरतसम ने एक नजर इर्द गिर्द डालते उसका हाथ पकड़ते अपने चेहरे के आगे किया था। निम्रा ने कुछ सोचे और समझने से पहले वो अपना लम्स उसकी कलाई पर छोड़ चुका था। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसका हाथ तोड़ देता। उसका इशारा थप्पड़ की जानिब था। निम्रा आंखें फैलाए खौफजदा सी उसे देख रही थी। अरतसम, मेरा हाथ छोड़ो। वो उसके लम्स पर तड़पती इधर उधर नजरें डालती परेशान सी बोली थी। किसी के इन्हें यूं देखने के डर से उसे झुर्री महसूस हुई। बहुत जल्द मैं ये हाथ हमेशा के लिए थाम लूंगा, वो पुरअज़म लहजे में बोलता निम्रा को हरासा कर गया था। निम्रा अपना हाथ आजाद होने पर तेजी से उठती वहां से भाग गई थी। आज उसे छुट्टी थी, तभी वह सकीना बेगम के कहने पर सुबह सुबह काम करने चली आई थी। सकीना बेगम को नाश्ता करवा कर वह इन्हें सख्ती से आराम करने का बोलकर आई थी। वो निम्रा के साथ उसके कहने पर किचन में मदद करवा रही थी। निम्रा उसे अच्छी लगती थी, वो बड़ी बेगम जैसी नहीं थी। निम्रा, ये काम मुलाजिम को बोलकर हमारी बात सुनो कमरे में आकर। बड़ी बेगम के बुलावे पर निम्रा ने नाश्ते की ट्रे नजारिया को पकड़ा दी थी। ये अरकम को उसके कमरे में दे आओ, मैं जरा अम्मा जी की बात सुन लूं, फिर तुम भी नीचे आकर नाश्ता कर लेना। निम्रा की बात पर वो धीरे से मुस्कुरा उठी थी। ट्रे थाम कर आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जाने लगी थी। अरकम के रूम के पास पहुंचकर वो बिना नॉक किए अंदर दाखिल हो गई थी। खाली कमरा देखकर उसने आंखें घुमाते ट्रे टेबल पर रख दी थी। वो, मेरे कमरे में नॉक करके आया करो। अपने पीछे से अरकम की भारी आवाज सुनकर वो बुरी तरह डरी थी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली थी। आपको शर्म नहीं आती मुझे मासूम को डराते हुए? वो बिना सोचे समझे बोल गई थी। अरकम उसे बेतासर अंदाज में देखता सोफे पर बैठ गया था। तुम्हारे मैट्रिक के पेपर्स होने वाले हैं? अरकम ने भूमरे भेजते पूछा था। हाँ जी, वो उसके चेहरे की तरफ देखती बोली थी। तो अरकम ने चाय का कप उठाते लबों से लगाते उसे एक गहरी नजर से देखा था। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? अरकम ने उसके चेहरे की तरफ देखते पूछा था। 1 हफ्ते बाद। वो सर हिलाती बोली थी। अरकम ने बतूर उसका चेहरा देखा था। कल से काम पर मत आना। अरकम के बोलने पर नजालिया एक की परेशान सी नजर फैल गई थी। आप मुझे ऐसे काम से नहीं निकाल सकते, वो तंग कर बोली थी, जबकि परेशानी से उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे थे। क्या करोगी तुम? अरकम ने सोफे से टेक लगाते तंजिया पूछा था। आप नाइंसाफी कर रहे हैं, मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, वो गुस्से से बोली थी। अरकम उसका गुस्सा से सुर्ख चेहरा देखता मुस्कुरा उठा था। कोई जुल्म नहीं कर रहा, आराम से अपने ध्यान दो, उसके बाद काम करने आना। मैं अम्मा जी से बात कर लूँगा, फिलहाल अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अरकम बेनियाजी से बोला था। नजानिया आंखों में ढेरों हैरत लिए उसे देख रही थी।
उसे देखने की जरूरत ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। जाओ ये ट्रे ले जाओ। उसने नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया था, सिर्फ चाय ही पी थी। थैंक यू, वो मशकूर सी उसकी आंखों में देखती बोली थी। अरकम उसकी आंखों में एक पल को खो गया था। उसकी आंखें बेहद पुरकशिश थी। बमुश्किल अरकम ने अपनी नजरों का जाविया बदला था। नजालिया के जाने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल गया था। वो अपनी सोचों में गुम किचन में खड़ी थी। इसके जहन में बार बार बड़ी बेगम की बातें आ रही थी। उन्होंने इसके लिए रिश्ते देखने शुरू किए थे, लेकिन वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। मगर बड़ी बेगम और दावर शाह ने बातों में फंसा कर राजी कर ही लिया था। उसने अभी तक इस बारे में अकम को भी नहीं बताया था। निम्रा अपने कान के पास गंभीर सरगोशी सुनते हुए बुरी तरह डर कर उछली थी। बहुत बुरे हो तुम, उसके मुंह से बेसाख निकला था। अपनी तेज धड़कन महसूस करते उसने पानी का गिलास मुंह को लगाया था। तुम बहुत बुरा हो ना, मैं दुआ करो तुम्हारा शौहर बन जाऊं। अतसम की बात सुनते निम्रा को पानी पीते जोर से फंदा लग गया था। उसकी बातों ने उसका दिमाग घुमा दिया था। ये बात मैं अगर अरकम को बता दूं ना, तो वो तुम्हारा वजूद गायब कर देगा। और निम्रा ने उसे घूर कर कहा था। उसकी ये बकवास बातें आजकल उसे भड़काने लगी थी। मैं डरता नहीं हूँ उससे। वो चंद कदम लेता निम्रा के करीब गया था। निम्रा ने लब भेज कर 2 कदम पीछे उठाने चाहे थे, जब अतसम ने उसका बाजू पकड़ते उसे रोक लिया था। और तुम्हें हासिल करने से मुझे अरकम या कोई भी शख्स नहीं रोक सकता। ये बात अपने जहन नशीन कर लो। अतसम संजीदगी से इस वक्त झुका बोला था। निम्रा ने उसे सीने पर दबाव डालकर पीछे हटाना चाहा था, जिसमें वो नाकाम रही थी। शर्म करो, तुमसे 9 साल बड़ी हूँ, और ये खलास अपने दिमाग से निकाल दो कि हमारी कभी शादी होगी या मैं तुमसे कभी शादी करूंगी। माँ जी ने जो रिश्ता दिखाया है, मैं आज रात ही उसके लिए हाँ करने वाली हूँ। निम्रा की बात सुनती अतसम का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया था, जबकि उसकी गर्दन की रगें फूल गई थी। अगर किसी ने तुम्हारे बारे में सोचा भी ना, उसका ऐसा हश्र बिगाड़ूंगा, सारी जिंदगी तुम्हारा नाम भी अपने लबों पर नहीं लेकर आएगा। उसके अंदाज की शिद्दत और ससुराहट लहजे ने निम्रा को खौफजदा कर दिया था। अतसम तुम अभी बच्चे हो, अपनी स्टडीज पर फोकस करो, और ये सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन है। निम्रा ने उसे समझाना चाहा था। उसके अंदाज से निम्रा को खौफ महसूस हो रहा था। मैं बच्चा नहीं हूँ, और खबरदार जो मेरे जज्बातों को इरिटेशन का नाम दिया। वो इसकी सुनहरी आंखों में देखता धारा था। बीवी तो तुम सिर्फ मेरी ही बनोगी, याद रखना। वो शिद्दत से बोलता, उसका बाजू झटके से छोड़ता अपने कमरे में चला गया। निम्रा शॉकटेड सी स्लेब के साथ लगी खड़ी थी। उसको अपने हाथों से जान निकलती महसूस हो रही थी। वो बच्चा था और उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, तभी उसने एक फैसला किया था। वो जानती थी वो जल्दबाजी कर रही है, मगर ये भी बेहतर था। नजालिया पढ़कर कुछ देर के लिए सो रही थी जब सकीना उसके पास बैठी थी। अपनी बेटी के बारे में सोचते उसकी आंखें भीगने लगी थी। इन्हें अपनी बेटी के फ्यूचर की बेहद फिक्र थी। इन्हें अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। दिन रात इनकी सेहत गिरती जा रही थी। जिंदगी रेत की मांद हाथों से फिसलती जा रही थी। चुनाचा उसके पेपर्स होने वाले थे। वो स्कूल से फ्री हो चुकी थी और काफी दिनों से कमरान उसका रास्ते में इंतजार कर रहा था। वो हर रोज आ रहा था, मगर उसे नजालिया नहीं मिल रही थी। उसे आज ही खबर मिली थी कि अब उसने स्कूल नहीं जाया करेगी। वो गाड़ी में बैठता पहली फुर्सत में उनके घर पहुंच गया था। दरवाजे पर तेज धड़क सुनकर सकीना बेगम परेशान सी उठी थी। दरवाजा खोलती कमरान को देखते उनके माथे पर बल पड़ गए थे। वो उसे नहीं जानती थी, मगर उसके कीमती लिबास और गाड़ी को देखकर वो परेशान हो गई थी। कौन हो बेटा, किससे मिलना है? सकीना बेगम ने नरमी से पूछा था। पीछे हट बुढ़िया, मैं चौधरी कमरान हूँ, मुझे अपनी माशूका से मिलना है। वो सकीना को बुरी तरह धक्का देता अंदर घुस आया था। नजालिया ने शोर की आवाज से मंदी मंदी आंखें खोली।
खोली थी। चौधरी कमरान पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें फैल गई थी। उसने तेजी से अपना दुपट्टा पकड़ते अपने इर्द गिर्द फैला लिया था। तुम अंदर कहाँ चले आ रहे हो? बाहर निकलो, हम शाह साहब से तुम्हारी शिकायत करेंगे। ये तुम्हारा गांव नहीं है जहाँ दिन दहाड़े तुम लोगों के घर घुस आओ। सकीना बेगम चीख कर बोली थी। नजालिया खौफ और हरासत सी जद पड़ गई थी। चुप कर बुढ़िया, नहीं तो तेरी बेटी को यहाँ से उठाकर ले जाऊंगा। मुझे कोई शाह नहीं रोक पाएगा। चौधरी कमरान की बातें सुनकर सकीना बेगम की जान हवा होने लगी थी। इनकी नजर अपनी बेटी पर गई जो जद दिखाई दे रही थी। तुमने मुझे बताया नहीं मेरी जान, तुम कब से स्कूल नहीं जाओगी? कमरान ने उसके करीब आते पूछा था। वो चारपाई पर बैठी कुछ मजीद खौफ से सिमट गई थी। और प्लीज जाए यहाँ से, छोड़ दे मेरा पीछा। वो पहली बार इल्तिजा बोली थी। चौधरी कमरान के चेहरे पर पथरीले तासर नुमाया हुए थे। मुंह बंद रख, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, बल्कि जल्द ही मैं तुझसे शादी कर लूंगा। कमरान उसके चेहरे को छूता बोला था। नजालिया नीम आंखों से उसका लम्स महसूस करती दबक कर पीछे हटी थी। चौधरी कमरान उसके अंदाज पर हंस उठा था। ये खौफ उसे बेहद पसंद आया था। वो भी यही चाहता था कि उसका डर नजालिया के दिल में रस बस जाए, वो उसके आगे कुछ न बोल सके। मेरी जान का अच्छे से ख्याल रखना बुढ़िया, मैं कुछ दिनों तक उसे अपनी दुल्हन बनाकर यहाँ से ले जाऊंगा। चौधरी कमरान सकीना बेगम से बोलता अकड़ कर चलता वहां से निकल गया था। नजालिया और सकीना बेगम दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थी। उसके बाहर निकलती सकीना ने तेजी से दरवाजा लॉक कर दिया था। कब से चला है ये सब? सकीना बेगम ने नाजलीला को बाजू से झंझोड़ते पूछा था। अम्मी, मुझे वो रास्ते में छेड़ता था, मुझे नहीं पता था वो इस हद तक चला जाएगा। वो इन्हें रोते हुए बता रही थी। सकीना बेगम अपनी बेटी के आंसू देखकर नरम पड़ी थी। इन्हें पता था चौधरी कमरान कितना बड़ा अयाश परस्त इंसान है और वो अपनी बेटी की जिंदगी तबाही नहीं करना चाहती थी। कुछ सोचते उन्होंने एक फैसला किया था। अच्छा, रोना बंद करो नजालिया, मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। वो इसके आंसू नरमी से साफ करती बोली थी। जाओ, खाना गरम करके खा लो और पेपर्स की तैयारी कर लो। मुझे हवेली जरा काम है, मैं वहां से होकर आई। सकीना बेगम चादर ओढ़ती नजालिया से बोली थी। नजालिया ने बिना कुछ पूछे सर हिला दिया था। सकीना बेगम दरवाजे को बाहर से लॉक करती हवेली चली गई थी। निमरा, अस्तम को बुखार है, उसे कुछ हल्का फुल्का बना दो और साथ कोई मेडिसिन दे दो। दावा शाह ने परेशानी से निमरा को बताया था। निमरा के चेहरे पर परेशानी के तासर छाए थे। वो तेजी से किचन में गई थी। अतसम के लिए खिचड़ी बनाती। वो अपनी सोचों में गुम थी। 2 दिन हो गए थे जब से सारे घर में उसने रिश्ते की बात फैल गई थी। तब से असम ने उससे कोई बात भी नहीं की थी। अरकम ने अलबत्ता इससे ये जरूर पूछा था कि क्या वो इस स्टेप के लिए राजी है जिस पर उसने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी। और अब कल उसे देखने के लिए लड़के आने वाले थे। दिल अजीब सा बेचैन था। वो खिचड़ी बनाती, मेडिसिन ट्रे में रखती उसके कमरे की जानिब बढ़ गई थी। नॉक करते उसने कमरे में दाखिल होते गहरे अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया था। उसने स्विच ढूंढते लाइट ऑन की थी। अतसम ने किसी की मौजूदगी महसूस करके अपना मुंह कंफर्ट से बाहर निकाला था। लाइट ऑफ कर दो, वो बिना उस पर दूसरी नजर डाले बोला था। हाँ तो सब, मैं मेडिसिन लाई हूँ, खाना खाकर मेडिसिन ले लो, बेहतर फील करोगे। वो ट्रे साइड टेबल पर रखती उसके सुर्ख चेहरे पर नजर डालते परेशान सी बोली थी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। वो गुस्से से सुर्ख आंखों से निमरा को घूरता हुआ बोला था। निमरा को उसकी आंखों से वहशत महसूस हुई थी। अब तो सब, निमरा ने बेसाख्त उसे पुकारा था। तुम इनकार कर दो, कह दो सबसे तुम अभी शादी नहीं करना चाहती। वो इसका हाथ थामकर बेसाख्त बोला था। उसकी आंखों में उम्मीद थी। वो नहीं जानता था कब और कैसे, लेकिन ये लड़की उसे चंद दिनों में बेहद अजीज हो गई थी। वो उसे सिर्फ अपना बनाना चाहता था। उसकी आंखों के पीछे छुपे सारे दुख दर्द खत्म कर देना चाहता था। और ये मुमकिन नहीं एहतसम,
निम्रा अपना हाथ छुड़वाती सर नफी में हिलाती बोली थी, माँ जी और दादाजी को ये रिश्ता पसंद है, मुझे इससे एतराज नहीं है। और निम्रा उससे पीछे हटती बोली थी। अर्तसम कंफर्ट हटाता तेजी से खड़ा होता उसे बाजुओं से थाम चुका था। उस शख्स की एक बेटी है, फॉरगेट सेक, तुम कैसे मान सकती हो? वो गुस्से से उसको बाजुओं से झंझोड़ता पूछ रहा था। तकलीफ से निम्रा की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो। निम्रा उसकी नजरों से नजरें मिलाती बोली थी, तुम भी मैं भी तो तकलीफ में हूँ, मेरी तकलीफ का क्या? वो इसकी आंखों में देखता बोला था। निम्रा ने अपनी नजरें चुरा ली थी। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। वो निम्रा को छोड़ता झटके से खाने की ट्रे उठाता जमीन पर फेंक चुका था। निम्रा भीगी आंखों से उसे देखती, मुंह पर हाथ रखती वहां से तेजी से निकल गई थी। वो अपने बालों को पकड़ता चीखा था। दर्द से उसका सर फटने को था, आंखों में वहशत सी फैली हुई थी। कल का सोचकर उसकी शरीर फटने वाली थी। तुम्हें न जाने किस्मत में क्या लिखा था। अरकम शाह घर है? सकीना ने हवेली की एक मुलाजमा से पूछा था, जिसने सर हिलाते साबत में जवाब दिया था। सकीना इधर उधर देखती अरकम के कमरे में की जाने बढ़ गई थी। दरवाजे को नॉक करती वो इजाजत मिलती अंदर दाखिल हुई थी। अरकम बेड पर कोई फाइल खोले कर बैठा था। सकीना को देखती उसने फौरन फाइल बंद की थी। और सकीना भी कोई काम था? उसने सकीना बेगम को देखते पूछा था। सकीना बेगम ने सर हिलाया था। मुझे आपकी मदद चाहिए, सकीना बेगम पूरी उम्मीद लहजे में बोली थी। कैसी मदद? अरकम ने खड़े होते पूछा था। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब खत्म हो जाए। मेरी बेटी का मेरे अलावा कोई नहीं है, मुझे उसकी बड़ी फिक्र होती है। मैं बड़ी आज से आपके पास आई हूँ, मेरी बेटी से निकाह कर लें। वो अरकम के आगे हाथ जोड़ती बोली थी। अरकम के माथे पर बल पड़े थे। मैं निकाह नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो वो हवेली की जिम्मेदारी होगी, उसे कोई मुश्किल नहीं होगी। अरकम ने संजीदगी से इससे कहा था, आप सिर्फ कुछ अरसे के लिए निकाह कर लें, फिर जैसी अच्छी जगह देखकर मैं उसकी शादी कर दूंगी। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस निकाह की खबर किसी को नहीं होगी, ये मेरा वादा है। मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। वह अरकम के कदमों की तरफ झुकने लगी थी जब तेजी से पीछे हटते अरकम ने इन्हें बाजुओं से थाम लिया था। ये आप क्या कर रही हैं? आप अगर कोई बात है तो मुझे बता दें, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा, मगर निकाह ये मुमकिन नहीं। अगर आप बीमार हैं तो मैं आपका अच्छी सी जगह इलाज करवाऊंगा, आप ठीक हो जाएंगी। वो स्पाट लहजे में बोला। बस मुझ गरीब पर एक एहसान कर दे, सिर्फ उससे निकाह कर लें। बेशक कुछ अरसे के बाद उसे आज़ाद कर दीजिएगा, इसकी कोई जिम्मेदारी आप पर नहीं होगी। सकीना बेगम की इल्तिजाएं और जुड़े हाथ देखकर वो बुरी तरह बेबस हुआ था। ठीक है, लेकिन इस बारे में किसी को खबर नहीं होगी। मैं उसका अच्छा रिश्ता मिलते ही खुद से आज़ाद कर दूंगा। अरकम अपने बालों में हाथ फेरता बोला था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब। वो मुश्किल सी नीम आंखों से बोली थी, मैं आपको इस बात का अंदाजा है आपकी बेटी मुझसे कितनी छोटी है? वो लब भेज कर बोला था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये निकाह सिर्फ आर्जी होगा। सकीना बेगम सर नफी में हिलाती बोली थी, क्या कोई नजालिया को तंग कर रहा है? अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दे, मैं इसका कोई और हल निकाल सकता हूँ। अरकम ने लब भेज कर संजीदगी से पूछा था। नहीं, मुझे अपनी जिंदगी को भरोसा नहीं, मैं बस अपनी बेटी को महफूज हाथों में सौंपना चाहती हूँ। सकीना बेगम की बात सुनकर उसके माथे पर तीवड़ियां चढ़ी थी। मैं इसके लिए कोई और रिश्ता देख सकता हूँ, मुझसे इसकी शादी करना जरूरी नहीं। अरकम किसी भी तरह इस मुसीबत से निकलना चाहता था। नहीं, मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। सकीना बेगम की बात पर वो जबड़े भेजता सर हिला गया था। सकीना बेगम अगर इतनी इल्तिजा ना करती तो वो कभी भी हामी ना भरता। अम्मी मैंने खाना गर्म कर दिया है, खा लें और अपनी दवाई भी ले लें।
नजालिया जो नहा कर निकली थी अपने गीले बालों को तौलिए से साफ करती सकीना बेगम को देखकर बोली थी। सकीना बेगम ने बहादुर नजाली को देखा था जो सादा से स्किन कलर के जोड़े में भी धमक रही थी। ये सारी खूबसूरती से अपने बाप से मिली थी जो पठान था, मगर जिंदगी के ऐसे सितम के वो उसे बड़े होते ना देख सके और जल्द ही इस दुनिया से चल बसे, वरना इनकी बेटी जो शहजादी थी। इधर आओ, मेरे पास बैठो। सकीना बेगम ने उसे अपने पास बैठने का कहा था। वो उनके पास आकर चारपाई पर बैठ गई थी। क्या हुआ अम्मी? अगर आप उस चौधरी की वजह से परेशान हैं तो टेंशन मत लें, वो बस बातें ही कर सकता है। शाह साहब के होते हुए वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नजालिया ने उनका हाथ पकड़कर उसकी पुश्त पर बूसा देते नरमी से कहा था। सकीना बेगम ने खांसते हुए मोहब्बत से उसके चेहरे पर हाथ फेरा था। मैंने एक फैसला किया है नजालिया, मुझे उम्मीद है तुम्हें इससे कोई इतराज नहीं होगा। सकीना बेगम ने उसकी आंखों में देखते कहा था। कैसा फैसला अम्मी? उसकी मुस्कुराहट सिमट गई थी, दिल में हजारों वसवसे आने लगे थे। तुम्हारा अभी कुछ घंटों बाद अरकम से निकाह है, तुम तैयार हो जाओ। इनकी बात बिजली बनकर उस पर गिरी थी। अम्मी आप मजाक कर रही है ना? उसने बेयकीनी से सकीना बेगम को देखा था जो सर से नफी में हिला गई थी। आप इसलिए हवेली गई थी, आपने इनकी मिन्नतें की होगी ना, वरना वो मुलाजमा की बेटी से क्यों शादी निकाह करें के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? वो तलखी से बोली थी। लहजे में अपनी माँ के लिए नाराजगी साफ जाहिर थी। मेरा चंदा, मैं तुम्हारे भले के लिए ही ये सब कर रही हूँ। अब तुम्हें समझ नहीं आ रही, मेरा फैसला गलत लग रहा होगा, लेकिन देखना एक बात आएगा जब तुम उसे बेहतर फैसला समझोगी। उन्होंने बेसाख्त उसे अपने सीने से लगाते उसके सर पर लब रख दिए थे। मुझे डर लग रहा है अम्मी, वो जाने खौफ के जहरे असर बुड़बुड़ाई थी। मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, इतनी छोटी सी बात पर मत डरा करो चंदा। उन्होंने उसे समझाया था, मगर वो गहरा सांस भरती खामोश हो गई थी। कुछ देर तक अरकम मौलवी साहब और गवाहों के साथ आ जाएगा। इससे पहले वो जो भी पेपर्स की तैयारी रहती है वो मुकम्मल कर लो। नजालिया इनकी बात सुनती अंदर कमरे में चली गई थी। आने वाले वक्त का सोचकर दिमाग मौज हो रहा था, हाथों में पसीना आ रहा था। नजालिया, अरकम आता ही होगा, तुम ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। उन्होंने उसे सादा सा सुर्ख रंग का जोड़ा दिया था जिसकी शलवार और कमीज सिल्क की थी, ऊपर दुपट्टा नेट का था। वो सर हिलाती, मुर्दा कदमों से चलती, कपड़े चेंज करती, बालों को बांध गई थी। सुर्ख रंग में उसकी सफेद रंग चांदनी की तरह धमक रही थी। बाहर दरवाजे पर दस्तक होती महसूस करती नजालिया की धड़कनें भी बढ़ गई थी। वो अपनी जिंदगी का एक अहम कदम उठाने वाली थी जिसके लिए अभी वो तैयार नहीं थी। उसका इरादा तो पढ़ लिख कर कुछ बनने का था, मगर न जाने किस्मत में क्या लिखा था। उसे बाहर से लोगों की आवाजें आ रही थी। वो सांस रोके बैठी थी। मौलवी साहब के आते ही उसकी हथेलियां नींद पड़ने लगी थी। सकीना बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो अपनी आंखों के आगे दुपट्टा किए बैठी थी। नजालिया यशान वल्द यशान खान, आपका निकाह सिक्का राजुल वक्त 1 लाख रुपए अरकम ताबिश शाह वल्द सरफराज आबिद शाह से किया जाता है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर उसने कांपते होठों से सरगोशी में आवाज निकाली, कबूल है, कबूल है, कबूल है। नजालिया के जवाब के बाद वहां मुबारकबाद की आवाजें उठी थी। उसने कांपते हाथों से पेन पकड़ते निकाहनामे पर साइन किया था। साइन करते ही वो सकीना बेगम के गले लगाने पर न जाने क्यों रो पड़ी थी। रकम जो अपने साथ साकिब और उसके जानने वाले कुछ दोस्तों को बतौर गवाह लाया था, इनसे मिलता मुबारकबाद वसूल कर रहा था। उसने इन्हें कुछ नहीं बताया था, बस साकिब से इतना कहा था किसी वजह से वो घर वालों से छुपकर निकाह कर रहा है। निकाह के बाद वो सबको वहां से भिजवा चुका था। वो तो खुद भी वहां से जाने के लिए मचल रहा था, मगर सकीना बी की वजह से रुक चुका था। बेटा किधर खड़े क्यों हो, बैठो। सकीना बेगम अपनी भीगी आंखें साफ करती अरकम को बैठने के लिए बोल रही थी।
मैं बस जाने लगा हूँ। मैंने आपके कहने पर निकाह कर लिया है, मगर इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। वो इंतहाई संजीदगी से बोला था। सकीना बेगम का चेहरा मुरझा गया था। इन्होंने धीरे से सर हिला दिया था। वो क्या सोच रही थी कि वो शायद निकाह के बाद उसे हवेली अपने साथ ले जाएगा। ये शायद ख्वाब में ही हो सकता था। ठीक है बेटा, खैरियत से जाओ, वो धीमे लहजे में बोली थी। अरकम सर हिलाता बिना नजालिया से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता वहां से चला गया था। नजालिया जो इसके इंतजार में बैठी थी कि शायद वो इससे मिलने आएगा, उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। नजालिया जो चेंज करके सो जाओ बेटा, अरकम को जरूरी काम था, वो चला गया है। सकीना बेगम की बात पर वो मुरझा गई थी। चेहरे पर छाई उम्मीद की रोशनी खत्म हो गई थी। मुझसे ऐसी मुलाजमा को वो क्यों अपनी बीवी मानेंगे। उसने तलखी से सोचा था। अपना सादा जोड़ा उठाती वो कपड़े बदल कर बदली से सोने के लिए लेट गई थी। सारी रात उसकी करवटें बदलते गुजरी थी। आधी रात को उठते उसने अपने पेपर्स की तैयारी मुकम्मल की थी। तहज्जुद पढ़कर वो एक बार सारा सिलेबस रिपीट करने लगी थी। दिल में बार बार अरकम का ख्याल आ रहा था, जिसे वो बमुश्किल झटला रही थी। सकीना बेगम को बुरी तरह खांसते देख कर उसने इन्हें उठकर पानी पिलाया था। हमें ये आपकी मेडिसिन से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? उसने परेशानी से पूछा था। सकीना बेगम एक पल को घबरा गई थी। मैं ठीक हूँ गुड़िया, बस कभी कभी खांसी आती है। तुम तैयारी करो, मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ। वो फजर की अज़ानें सुनती उठ खड़ी हुई थी। नजालिया इनकी बात पर सर हिलाती पढ़ने लगी थी। आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने? अब्तसम बड़ी बेगम ने उसे 9 बजे उठकर कमरे से बाहर निकलते देखकर पूछा था। नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दे। वो इनकी गोद में सर रखता इनके पास सोफे पर लेट गया था। तुम्हें तो अभी तक बुखार है, रात को मेडिसिन नहीं ली थी ना? इन्होंने इसका माथा तब तक छूते पुछानी से पूछा था। नहीं, आप चाय बनवा दें ताई अम्मी जान, मेरे सर में शदीद दर्द है, वो भारी आवाज में बोला था। निमरा, बच्चे अब्तसम के लिए चाय बना दो, साथ कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता बना दो और मेडिसिन भी ले आओ। बड़ी बेगम के बैठते बैठते निमरा को आवाज दी थी, जो अभी लॉन से वॉक करके आई थी। निमरा की नजर बेसाख्त अब्तसम की जानिब गई थी, जो आंखें मोड़े सुर्ख चेहरा लिए माँ जी के पास आड़ा तिरछा होकर लेटा हुआ था। उसके दिल को कुछ हुआ था। वो कल से ही बेचैन थी। रात देर कई बार खुद को समझा चुकी थी, जो हो रहा है सही हो रहा है, मगर दिल था कि मान ही नहीं रहा था। वो तेजी से अब्तसम के लिए चाय और टोस्ट बनाकर ले आई थी। उसने ट्रे इनके सामने टेबल पर रख दी थी। अब्तसम ने एक नजर भी उठाकर उसे नहीं देखा था। निमरा ने बेसख्त अपने लब काटे थे। उसकी बेरुखी न जाने क्यों तकलीफ दे रही थी। जल्दी उठो और तो सब नाश्ता करो और मेडिसिन लो, बड़ी बेगम ने सचकी से कहते वो उठ बैठा था। एक टोस्ट और चाय के साथ घूंट भरता हुआ निमरा को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किए जमीन को घूर रहा था। मेडिसिन खाता हुआ खामोशी से उठकर अपने कमरे में चला गया था। पता नहीं क्या हो गया है उसे, कहाँ से बीमार होकर आ गया है। बड़ी बेगम परेशान सी बोली थी। तुम आज दोपहर को कोई काम मत करना और शाम को टाइम से तैयार हो जाना। बड़ी बेगम ने हिदायत दी थी। मैं सकीना की बेटी को बुला लूंगी, वो काम संभाल लेगी, तुम परेशान मत होना। उन्होंने उसे अपने पास बैठाकर नरमी से कहा था। वो खामोशी से सर हिला गई थी। वो क्या बताती, उसका दिल मुड़ गया है। वो खामोशी से उठकर वहां से चली गई थी। अब्तसम का अजनबी अंदाज वो खामोशी से उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वो उसे शुक्र था अगले पेपर्स में छुट्टी थी, वरना यूं बड़ी बेगम के अचानक उसे काम से हवेली बुलाने पर उससे तैयारी नहीं हो पानी थी। सकीना बेगम खुद जाना चाहती थी, मगर इनकी तबीयत ने इजाजत नहीं दी थी। तभी उन्होंने मजबूरन उसे अकेला हवेली में भेज दिया। उसे बेहद अजीब लग रहा था। जिस शख्स के साथ उसका निकाह हुआ था, उसी घर में बहसियत मुलाजमा काम करना उसे बेचैन कर गया था।
बड़ी बेगम ने उसे आते ही कई काम सौंप दिए थे, जिनमें पहले सारी सफाई करना और फिर किचन में काम करवाना शामिल था। वो खामोशी से तेजी से हाथ चलाती सारा लॉन्ग चुका चुकी थी। बड़ी बेगम के कहने पर अरकम भी ड्यूटी से जल्दी हवेली वापस आ गया था। हवेली में हड़बड़ी मची हुई थी। वो साकिब से बात करता बिना इर्द-गिर्द नजर डाले लंबे लंबे डाक भरता सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहा था, जब अचानक उसकी नजर डस्टिंग करती नाजिलिया पर पड़ी थी। वो ठटक कर रुक गया था। माथे पर तिमड़ियां चढ़ाई गई थी। लड़की, दो घंटे से यहाँ लगी हुई हो, जल्दी हाथ चलाओ, बहुत सुस्त हो तुम। बड़ी बेगम की ओर नजालिया पर चलाते देखकर उसने बेशक अपने जबड़े भेज लिए थे। वो उसके निकाह में थी, चाहे जिन हालात में भी ये निकाह हुआ था। उसे कहाँ मंजूर था वो बतौर मुलाजमा काम करे। सारी डस्टिंग हो गई है बड़ी बेगम, बस टेबल साफ करने वाले रहते हैं। वो नजरें झुकाए आहिस्ता आवाज में बोली थी, जल्दी से काम खत्म करके किचन में काम करवाओ। नजालिया ने सर उठाते अपनी नजरें उठाई थी। उसकी आंखें सामने खड़े अरकम की आंखों से टकराई थी। वो एक नजर देखती फौरन अपनी नजरें फेरती हाथ चलाने लगी थी। शुक्र है तुम आ गए हो अरकम, जाओ फ्रेश हो जाओ। बड़ी बेगम की अचानक नजर अरकम पर पड़ी थी। वो उसे देखते नरम लहजे में बोली थी। वो सर हिलाता अपने कमरे में चला गया था, जबकि उसकी सोचें बुरी तरह नजालिया में उलझी हुई थी। नजालिया दर्शन करती हाथ धो कर किचन में आ गई और किचन में दूसरी मुलाजमीन के साथ काम करवाने लगी थी। अम्मा जी, किसी मुलाजमा को भेजकर मेरे कमरे की सफाई कर दे, मुझसे पानी गिर गया है। अरकम फ्रेश सा सलवार कमीज पहने अपने बाजुओं को मोड़ता नीचे आया था। नजालिया, जाओ जाकर अरकम के कमरे की सफाई कर दो, वैसे भी यहाँ तुम कोई काम नहीं कर रही। बड़ी बेगम ने किचन में झांकते नजालिया को फारिग खड़ा देखकर रौबदार लहजे में कहा था, जी बड़ी बेगम। वो सर हिलाती बाहर निकल गई थी। थकन से हालत बुरी हो रही थी। सारी रात ना सोने की वजह से आंखें दर्द कर रही थी। नींद से बार बार जमाइयां आ रही थी। वो नींद से सुर्ख पड़ती आंखों के साथ थकन से चूर सफाई करने ऊपर चली गई थी। वो इस वक्त घर जाकर आराम करना चाहती थी, मगर हवेली के काम ही खत्म नहीं हो रहे थे। अरकम के कमरे में जाते उसने पहले बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोया था। फिर उसे थोड़ी होश आई थी। वॉशरूम से बाहर निकलते उसका सामना अरकम से हुआ था, जिसे अचानक अपने सामने देख वो एक पल को डर गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरकम ने लब भेजे पूछा था। कमरे की सफाई करने आई हूँ, उसने स्मार्ट लहजे में जवाब दिया था। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम हवेली में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पेपर्स तक हवेली काम करने से मना किया था। वो सख्ती से बोल रहा था। नजालिया ने नजरें उठाकर उसका स्मार्ट चेहरा देखा था। बड़ी बेगम ने बुलाया था, इसलिए काम करने आई हूँ, वरना मुझे शौक नहीं लोगों के घर जाकर जबरदस्ती काम करूँ, वो तल्खी से बोली थी। अरकम ने सख्त नजरों से उसे देखा था। अब आ गई हो तो जल्दी से मेरे कमरे की सफाई करो। वो गुस्से से बोलता सोफे पे जाकर बैठ गया था। नजालिया आंखें बंद करके खोलती, अपना गुस्सा काबू करती सफाई करने लग गई थी। अरकम सिरगिर निकाल कर सुलगा था, उसको गहरी नजरों से देख रहा था। नजालिया उसकी नजरों से डिस्टर्ब होती, बार बार नर्वस हो रही थी। आपने पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी? वो तंग कर बोली, पूछने लगी थी। नहीं, उसने डीठ बनकर स्पष्ट अंदाज में जवाब दिया था। नजालिया का दिल कर रहा था उसका गला दबा दे। मेरी चेहरे की तरफ मत देखो, अपना काम करो। अरकम की सख्त आवाज सुनकर वो मुठियां भेजी दोबारा काम करने लगी थी। अरकम ने सिरके को एस्ट्रे में मसलते उसकी जानिब देखा था, जो सुस्ती से काम कर रही थी। कल अगर तुम हवेली में काम करती दिखाई दी तो तुम्हें हमेशा के लिए काम से फारिग कर दूंगा। ये काम करके फौरन घर जाओ। अरकम ने उसके थकनदर्द चेहरे को फोकस में लेते सख्त लहजे में कहा था। नजालिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, जिससे अरकम को गुस्सा आने लगा था। तुमसे मैंने कुछ कहा है? अरकम ने उसका नाजुक बाजू पकड़ते झंझोड़ा था, वो पूरी तरह हिलकर रह गई थी। जी ठीक है, वो अपने खुश्क लब तर करती बोली। अरकम ने हाथ
के इशारे से उसे जाने का कहा था। वो तेजी से वहां से निकल गई, मगर जाते हुए बड़ी बेगम को बताना नहीं भूली थी, जिन्होंने उसे मुश्किल जाने की इजाजत दी थी। उसे मेडिसिन से काफी फर्क पड़ा था। अब वो फ्रेश फील कर रहा था, लेकिन उसका बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा था। वो कमरे से निकलता बिना किसी की नजर में आए घर की पिछली साइड पर मौजूद लॉन में चला गया था। वो कैसे देख लेता उसे कोई और देखने आया है। उसका दिल कर रहा था अंदर जाकर सब कुछ तोड़ फोड़ दे, सब कुछ तहस नहस कर दे, सबकी नजरों से छुपा ले। ठंडी हवा ने उसकी फटी शरणों और दिलो दिमाग में मचे शोर को थोड़ा कम किया था। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया था। किसी के कदमों की आवाज सुनकर उसने नजरें उठाकर दाएं जाने देखा था, जहां निम्रा को किसी लड़के के साथ देखकर वो स्टार अंगेज हुआ था। वो लोग कुछ बातें कर रहे थे जिसकी उसे आवाज नहीं आ रही थी। उस लड़के को निम्रा की तरफ देखकर मुस्कुराते देखकर अर्तसम को आग लग गई थी। अपनी मुट्ठियां भेजी उसने बमुश्किल खुद को इनके पास जाकर उस लड़के का मुंह तोड़ने से रोका था। वो शख्स एक बच्ची का बाप था। ये सोचते हुए उसे मजीद गुस्सा आ रहा था कि क्यों बड़ी बेगम और दावा शाह ने उसके रिश्ते के लिए हाँ की थी, और अभी क्यों इन्हें ये रिश्ता याद करना याद आया। कुछ देर बाद वो लड़का बात करता अंदर चला गया था। निम्रा साथ आप खारिज करती आहिस्ता वहां चक्कर लगाने लगी थी। तभी आतिम उसे अपनी जानिब आता दिखाई दिया। अपनी जानिब आता देखकर खामोशी से खड़ी हुआ था। वो जानता था वो उसे देख नहीं सकती थी, क्योंकि वो अंधेरे में खड़ा था। वो उसके अपने करीब पहुंचती आतिम ने एक हाथ उसके मुंह पर रखते उसे खींच के दरख्त के साथ लगाया था। निम्रा इस अचानक हमले पर बुरी तरह घबराई थी। देख लिया उस लड़के को, आ गया पसंद तुम्हें? वो तंजी अंदाज में उसके कान के करीब झुका फनकारा था। उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती निम्रा की सांसों का तनस्सुफ बिगड़ा था। आतिम के चेहरे से हाथ हटाने पर निम्रा ने अंधेरे में उसे देखा था। हाँ, आ गया है पसंद। कुछ महीने बाद निकाह भी है। हो गया है। कुछ महीने बाद निकाह भी तय हो गया है। वो संजीदगी से बोलती अर्तसम ने उसकी बात सुनते गुस्से से पीछे दरख्त पर मुक्का मारा था। निम्रा इसकी हरकत पर बुरी तरह डरी थी। मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। वो इसकी थोड़ी झगड़ता नरमी फकारा था। निम्रा की धड़कनें तेजी से बढ़ गई थी। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा निकाह इस शख्स से हो जाए, मेरे मरने की दुआएं करना शुरू कर दो। उसकी बात ने निम्रा को हिला दिया था। उसने तड़प कर उस पागल को देखा था जो न जाने क्यों उसे इतना चाहने लगा था। निम्रा ने अपने कांपते हाथ उसके सीने पर रखते उसे खुद से दूर धकेला था। अर्तसम ने इस पर गिरफ्त ढीली कर दी थी, जिस पर वो तेजी से वहां से भाग गई थी। अर्तसम की सुर्ख आंखों ने उसका दूर तक पीछे किया था। वो हर हाल में उसे अपने नाम करना चाहता था, और ये कैसे करना था वो अच्छे से सोच चुका था।